देखिए जी, प्लेऑफ में ना अपनी शुरुआत करो तो ऐसे करो। पहले बल्लेबाजी करी तो आपने क्या विशाल बल्लेबाजी करी है, जो सामने आया उसको आपने लपेटा है और बाउंड्री पे पहुंचाया है। कुल मिला के जो आज बल्लेबाजी हुई है, यहाँ पे थोड़ा बहुत उन्होंने नृत्य कला दिखाई, लेकिन वो एक छोटी सी पॉजिटिव वहां पे एडीकेआर के लिए दिखी, क्योंकि उसके बाद आई है साझेदारी सैम बिलिंग्स और सिकंदर रजा द्वारा 69 रन पार्टनरशिप यहाँ पे, जिसके बलबूते पे उन्होंने बनाए 188 रन। और फिर मतलब ये नहीं कि 188 बन गए तो आराम से बैठो जी, गद्दा लगाओ और मैच का सेवन करो। जल्द से जल्द एडीकेआर को आउट किया और 85 रन से अबू धाबी नाइट राइडर्स को मात दी यहाँ पे दुबई कैपिटल्स ने, who are now making their way to Sharjah, one step away from the final of DP World ILT20 Season 2। क्रिकेट सवारी में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे पास जी फुल हाउस है यहाँ पे। हमारे साथ है हरभजन सिंह, Virender Sehwag, and also Sam Billings. Sam, I have to tell you, so when we were discussing who do we get for the Hindi show, everyone said Sam Billings because he understands Hindi. That's the perfect guy for Hindi. Little bit. No, I always see, I mean, before we get into, of course, the game, congratulations. You're always talking to the fans. Jaldi. That's what you keep on saying. Is that the one word you've learned? And There's a few words, yeah. Harbhajan taught me some naughty words as well in Cheddar. So, no, I mean, for me, wherever I travel to, I just like to ask or find out how to ask if someone's okay, how are they. So I feel like it's something that obviously gets you to know people pretty quickly and builds that understanding. So, yeah, just a little bit. Before I hand over to the legends, just one word, because what we were seeing outside there was, it just seemed like one team had come in that was switched on, the other just seemed completely switched off. And is that what momentum is? Win two, and you carry that on in this league? Maybe a little bit. They're a very good side. Look, I think we've played some really good cricket and found a method, certainly on these pitches. So, yeah, we've just started to find a formula for our team that seems to be working. And look, at the toss, I said pretty honestly and openly that we were going to bat first anyway. We felt that was the best way to do it, and it seems to get harder and harder in these conditions. So, whereas they obviously were thinking about something different. So I think maybe they didn't quite have the clarity on these conditions, and so it helped us playing here so recently. वीरू भाई, इनकी बल्लेबाजी, कप्तानी दोनों ही कमाल की रही थी. I think you guys batted really well. When you went in with, I think, 2 down or 3 down. So what was in your mind when you went in that? What target you thought that good on this track? Yeah, I thought 160 plus. We were right in the side, and we felt the other day against MI that we actually had a really good platform. And obviously in T20 cricket, when you have a platform, you want to be able to kind of kick it on. For me, obviously took a bit of a punt against Sunil there in his last over with the wind going this side, and then felt we'd earned the right. Do you know that I predicted 20 runs in that over? Me and Harbhajan Singh was sitting there, and I said that this guy will go for 20 runs, and almost 18-19 runs you hit him, that first 6 and then 2 fours. And if I listen to you guys, it obviously helps me. So no, but we good advice. But we were discussing in Hindi, so you couldn't understand. No, sir. He can understand only jaldi. So if you leave jaldi, then we can finish our show also. Absolutely. He's giving you a hint. I'll stop talking. I believe some players, they become better with the responsibilities, and you seems to be one of those. Since the time you have taken over the captainship, your leadership, seems to be getting better and leaving colours on the others as well to explore themselves. How are you enjoying this role as a captain and the aggressive batter you are? You have always been. Yeah, I love captaincy. I've done it kind of for 7 or 8 years, and certainly over the last couple of years, winning the 100, winning the T20 Blast at home as captain. For me, I know that even if I don't get the runs, I can impact a game with the decisions I make. So, look, everyone thinks I'm pagal. But actually, I know you're not. That's why we call you on the Hindi show. But I do a lot of homework on each batsman. Yeah. I know, on the conditions and stuff like that. So, I like doing my homework and my research with the analysts. So I have a pretty clear idea on what people's strengths are and try to help out the bowlers as much as possible. But that's a great thing. I feel like I can impact a game, even if I probably don't get the runs that I want to get. You're not the only one who's pagal. So the two pagal are standing. That's why we get on well. That's why we won championship.
exactly. That's Together. why. That's why we went together. Yeah. We won the championship. We won together. 2 World Cup together. Okay, he's also pagal. Three then. pagal. All 3 pagal. But So just one more thing. Sorry to say. We have to go back to home also. Yes. You're Yeah. doing the second stint as well. after the break. Inform you. Just on your thought on Stones, how well he bowled for you, and the spinners, how well they are taking the responsibility and delivering. You're keeping things simple for them, and what do you suggest them to take wickets or contain? Yeah, always taking the positive option. A couple of times we had 5 people in the circle for a new batsman. So I feel on these pitches that if people tried to hit out straight away, it's very difficult because the pitches you definitely need to be able to give yourself time as a batsman. So for me, again, trying to be aggressive, trying to take wickets consistently. And I think Scott Kuggeleijn and Ollie Stone have really complemented each other really nicely. Scott is a swing bowler, whereas Ollie is more of a nip bowler and hits the pitch hard and can bowl fast. So we've got a really nice, well-balanced attack. We know that any T20 team needs a good wrist spinner, and Zahir has come in straight off the plane from Afghanistan and bowled beautifully. So we've just got all bases covered and playing good cricket. A word on reviews, since you're captain, everything rests with you. In that last game as well, you left it to that last second, and it of course worked for you guys. Today, first ball, you went for it, didn't happen. Then again, you went for it, and it worked for you finally. Yeah, the first one, I felt it was really tight. Look, it's nipped a long way, but I think it was maybe a little bit closer than that. And then this second one, I thought Scott was going to try and kill me if I didn't review it. But I'm trying to channel my inner Dhoni. He's so calm and he doesn't normally listen to the bowlers too much because they get quite emotional. But you were asking him, "Are you sure? Are you sure?" Did he hit it or not? So I'm just, I want to get clarity, and we've got 15 seconds, so I quite enjoy actually when the bowler just gets angrier and angrier as well. So it's quite funny. Do you sort of put blinkers on? Don't look at the bowler at that time while making the review. Go with judgment. Go with instinct. Yeah, I've got a couple of people that are very calm, level-headed guys in the field as well, and they'll give me honest feedback. So I think if everyone in the Big Bash, I had Marnus Labuschagne on the same team as me, and he thinks everything's out. So you just got to pick your guys, and you got to go, you trust those guys. And it was a big wicket. Jason Roy's a destructive player, so lucky we reviewed it. I have to ask you about your partnership with Sikandar Raza. Whenever you guys come out to bat, it just looks so solid. 69 today in that partnership as well. Is it everything's in sync? Are you talking too much over there, or is it the kind of partnership where you don't need to talk too much? We communicate a little bit, but I think he's a wonderful cricketer. Certainly in the last few years, he's really kind of come on leaps and bounds. His international record's phenomenal, and an all-rounder as well. He can change the game. He's very good, obviously, square of the wicket, cut shot and pull shot. So whereas I actually like to hit down the ground and kind of fuller balls. So I think actually it can be quite hard for a bowler to adjust from going too short to him. And they want to bowl that length to me, but actually they want to go a bit fuller to him. So I think we're complementing well, and we can run hard between the wickets. I think it's a huge part that gets underestimated in T20 cricket, that actually running hard, creating those ones and twos, I think there was a 3 that was an overthrow that we created. So they're the kind of things that can really help. So it definitely helps me if I have someone who runs well. He's running out of space in the closet with all those Man of the Match awards. I know, what do I need to do? Come on, guys. Be a little more pagal. Easy, done. Viru bhai, but inki catching bhi aap dekho. Leave it there. Before he leaves, just say Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Kya baat hai. Sam, thank you so much for joining us. Dandavad. And congratulations once again. Thanks, Thank you so Sam. much. Well Thank you done. so much. Thank you. Yep, that of course, bhai, nahi, main Angrezi mein, sorry. हिंदी वापस आ जाओ वापस पागल चला गया नहीं हिंदी में आ गए जी वापस सर बट इनकी वीरू भाई यार मेरी बड़ी अंग्रेजी सही निकली आज बड़ी सही देखी है ना बड़ी अच्छी एक गलती नहीं करी तू तो अपना क्वेश्चन लेके पेपर लेके फर्रा क्या है नहीं क्वेश्चन पे मतलब रट के आया था कि यही क्वेश्चन है एक तो वर्ड होगी इधर उधर आज एक भी नहीं हुआ कभी कभी हो जाता है ना यार सही अमेजिंग ऐसे ही थोड़ा ना पागल तुझे बुलाया है नहीं नहीं सर पागल वैसे इनकी ये ऑलराउंड आप कैपेबिलिटी देखो वीरू भाई कैचिंग भी आप देखो
तगड़ा कैच लिया इन्होंने टूर्नामेंट में, बंदा मतलब एथलेटिक है, मॉडर्न डे क्रिकेटर जिसे कहते हैं ना। बिल्कुल, कीपिंग भी की है, फील्डिंग करते वो ब्रिलियंट कैच पकड़ा पहले ही मैच में राइट हैंड पे डाइव लगाकर। नो डाउट एक बहुत स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट जिसे कहते हैं ना, वो स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर है, कप्तान है। और उन्होंने एक चीज़ का सब समझते हैं, शायद वो पागल है बट अपना होमवर्क करके आते हैं। यही एक अच्छे लीडर और कप्तान की निशानी। और उन्होंने कहा कि मैं जिस भाषा का वो खिलाड़ी जिस कंट्री से आता, शायद उस भाषा में उनसे पूछना चाहता हूँ आप कैसे हो, तो उसको कंफर्टेबल भी कर देता है। स्मॉल थिंग वो इतना काम करता है। क्योंकि अगर जब मैं पहली बार इंडियन टीम में पहुंचा था और मेरा कप्तान अगर मुझे सिर्फ अंग्रेजी में पूछता तो मैं उससे गुफ्तगू कर ही नहीं सकता था, क्योंकि मुझे अंग्रेजी उतनी आती नहीं थी और वो हिंदी बोलेगा नहीं, तो फिर करके मैं निकल जाता। बट मेरे कप्तान ने आके मुझसे पूछा भी कैसे हो, ठीक हो, क्या चाहिए, क्या क्या मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए कि तुम अच्छा परफॉर्म करो। बस उनका उतना हिंदी में कहना ही मेरे लिए बहुत था। तो मैंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए, वो बताओ। और मैंने जब मैं वो करने लगा तब मजा आया। सर छोटी चीज है ये बहुत, बट इससे पता चलता है कप्तान ह्यूमन को आप टच कर रहे हो ना, एज अ ह्यूमन बीइंग वहाँ पे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कप्तान आपके साथ आपके तरीके से आपको जो मतलब कंफर्ट दे, किसी प्लेयर के लिए उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती है। मैदान पे तो देखिए, हम देखो कोई 19 होता है और 21, जब वो 19 वाला 21 तब बनता है जब उसको वो कॉन्फिडेंस मिलता है, जब वो लगता है कि यार आई बिलोंग टू दिस प्लेस। वो कौन कराता है? कप्तान की बड़ी जिम्मेदारी है उसमें। और कप्तान साहब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है यहाँ पे। इस टूर्नामेंट में 2 बेहतरीन कैचेस ले चुके हैं, एंड नॉट जस्ट दैट, इस टूर्नामेंट में पूरे डीपी वर्ल्ड ILT20 के सीजन 2 में हमें कुछ बेहतरीन कैचेस देखने को मिले जिसका अब आप सेवन करेंगे। डीपी वर्ल्ड ILT20 में फील्ड पर कमाल तो होते ही रहते हैं, और सीजन 2 भी कुछ अलग नहीं है। पेश हैं अब तक की 5 जबरदस्त कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट। सबसे पहले मैच नंबर 2 में ये जबरदस्त कैच, दुबई कैपिटल्स के सैम बिलिंग्स की ये डाइविंग कैच जिसने माई एमिरेट्स के विल स्मीथ को बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद माई एमिरेट्स के ट्रेंट बोल्ट का ये कैच जिसने शारजा वॉरियर्स के बाजिल हमीद का विकेट छिटकाया और फैंस का दिल जीत लिया। लिस्ट में एक बार फिर हैं सैम बिलिंग्स। इस बार गल्फ जायंट्स के स्टार बैटर जेम्स विंस के शॉट पर सुपरमैन सैम ने जंप करते हुए लॉन्ग ऑफ पे पकड़ा ये कैच। और ये एक कमाल का कैच हमने देखा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। अली नसर ने गली में फील्डिंग करते हुए पकड़ा जबरदस्त कैच और माई एमिरेट्स के निक पूरन को चलता किया, जिसके चलते डेजर्ट वाइपर्स ने मैच भी जीता। एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट, उनका ये वन हैंडेड कैच लॉरी एवंस को निराश करता है। जबरदस्त कैचेस, जुड़े रहिए ऐसे और जबरदस्त कैचेस के लिए सिर्फ डीपी वर्ल्ड ILT20 पर। कैचेस तो जबरदस्त थे, आवाज कैसी थी? आवाज बेहतरीन थी, बिल्कुल। वो भी तो एक पागल था। वीरू भाई, आपका फेवरेट कैच आपके साथ? अली नसर, जो उन्होंने थर्ड मैन पे कैच पकड़ा ना पूरन का, उस कैच ने एक्चुअली मैच बदल दिया। बाकी और कैचेस में शायद मैं कहूँ कि सैम बिलिंग ने जो भी कैच पकड़े उनसे मैच जीते नहीं, बट कैच वो भी अच्छे थे। लेकिन उस कैच ने, और उनके पास टाइम नहीं था क्योंकि खड़े थे, इतनी तेज आया कि सिर्फ रिएक्ट करना था। बाकी कैचेस में टाइम था फील्डर के पास जाके एडजस्ट करने का, कूदने का, बट उसमें टाइम नहीं था। तो मेरे लिए वो है। भाजी आपके लिए? मेरे लिए बोल्ट का कैच, देखिए क्योंकि भाग रहे हो ना, जब आप भागते हो तो आपका सर हिलता है, और सर हिलता है तो फिर थोड़ा बॉल भी ऐसा दिखता है कि कहाँ पे उस समय पे सही टाइम पे बॉल को पकड़ना, वो भी एक हाथ से, और फिर रोल करना। मेरे लिहाज से मुझे तो वो कैच पसंद आया। सर यही पकड़ा था, आई थिंक यही कहीं था वो। यही कहीं पकड़ा था उन्होंने कैच। वैसे आज इस ग्राउंड पे एक और अच्छा कैच पकड़ा गया, वो है टॉम एबल साहब से। एक बार आपको वो कैच फिर से दिखा देते हैं यहाँ पे। वीरू भाई भजी, आप ये देखिए, ये पकड़ा जी, कोई अच्छे कैचेस देखने को मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बट इसमें भी मैं कहूँगा कि टाइम है, तो कि कैच में जब टाइम होता है तो आप डाइव मारने का टाइम है तो आप उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप रिएक्ट करते हैं ना, जब आपके पास टाइम नहीं होता, तो वो कैच मुझे लगता है कि ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसमें शायद समय था तो उन्होंने बखूबी डाइव का टाइम किया और टाइम करके दोनों हाथों से बड़े आराम से कैच पकड़ा। जबकि अली के वाले में बॉल तेज गेंदबाज था, टाइम नहीं मिला, और वो क्या गेंदबाज हैं यार, उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकी और इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो ज़्यादा मेहनत करते, प्रैक्टिस करते हैं, वो शायद उतनी बड़ी टीम से नहीं आते हैं, लेकिन फील्डिंग का जो मुजाहरा उन्होंने दिखाया वो कमाल का था, मज़ेदार। वैसे आज अगर आप अबू धाबी नाइट राइडर्स की बात करेंगे तो आज ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकते,
एक है करनी क्यों है? एक ही टीम आई थी खेलने। ये वाला सर बिल्कुल ये क्या है? मैंने ये वो बताया था, मैंने चीटियां छोड़ दी इनकी वो पैंट में हमने, तो ये वो है, ये देखिए। तो ये मेरी समझ से तो परे है भाई, ये डांस है या चीटियां छोड़ी का ही हो सकता है। चीटियां ही है, डांस तो नहीं है। ये कोई मूव तो है नहीं, ये कोई मूव नहीं है। सर ये वेस्ट इंडीज वाले अपना सेलिब्रेशन लेके आते हैं। नहीं, ये तो करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे खारिज हो रही है तो ये सेलिब्रेशन है? अगर मैं विकेट लेके खारिज कर दूंगा इधर तो ये क्या सेलिब्रेशन होगी? तो हम हाईलाइट में चलाएंगे, ये भी होगी सेलिब्रेशन होगी जी, देखने को मिलेगी। अंदर से भाग आए हैं वापस, सेलिब्रेशन होगी। ठीक है जी, फिलहाल हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक वीरू भाई। पकड़ के रखे नहीं, ये जाए ना। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं भाई, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हरभजन होंगे कि नहीं, ब्रेक के बाद आपसे बातचीत करेंगे। क्रिकेट सफारी में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है भाई। दुबई कैपिटल्स ने यहाँ पे अबू धाबी नाइट राइडर्स को बाहर कर दिया इस टूर्नामेंट से। अब वो खेलेंगे शारजा में। दे विल प्ले द विनर ऑफ माई एमिरेट्स एंड गल्फ जायंट्स। लेकिन उससे पहले भाई हरभजन सिंह को रोक नहीं पाए, लेकिन निखिल चोपड़ा हमारे साथ हैं यहाँ पे शो पे। सर गुड टू सी यू एज ऑलवेज। शुक्रिया सर, गुड टू सी यू सर। मैं एक बात से पूछना चाहता हूँ, हमने तो मतलब बहुत बातचीत करी इससे पहले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको क्या व्हाट इज दैट वन बिग टेक अवे आपके हिसाब से? मोमेंटम, क्योंकि दूसरी टीम तो ऐसा लग रहा था खेलने नहीं आई है, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। देखो पूरे टूर्नामेंट में जो ट्रेंड भी चल रहा था ना कि जो टीम मतलब बाद में चेस कर रही है वो आसानी से मुकाबला जीत रहे हैं, लेकिन 5 ओवर में 62 रन बनाना, 19 बॉलों में 40 रन, आई थिंक वो 188 वो गेम चेंजर था, और 188 अब तक टूर्नामेंट में चेस नहीं हुआ। दैट वाज द बिगेस्ट गेम चेंजर। वैसे एक हमने बल्लेबाजी की काफी बातचीत करी है, लेकिन गेंदबाजी में बातचीत करने की उस इंसान की जिसने 4 विकेट लिए, नाम है कुगलाइन लेकिन हम बोलेंगे स्कॉट की आज अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली वीरू भाई, स्पेशली अप टॉप फर्स्ट 6 में अगर विकेट कोई लेता है इस फॉर्मेट में। स्कॉट ने वाटर लगा दी। मैं देखिए यही एक विकेट था जेसन रॉय का, यही एक खिलाड़ी ऐसे था, अगर ये चलते तो शायद मैच एक तरफा कर सकते थे, जिता सकते थे अबू धाबी नाइट राइडर्स को, लेकिन उनको आउट किया पहले ओवर में। उसके बाद तो फिर एक औपचारिकता थी, फिर सबको ये मालूम था कि इतने रन बन नहीं सकते, चेज नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी आपको गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ती है आउट करने के लिए, और वो स्कॉट ने बेहतर किया। स्कॉट ने वाट लगा दी। लेकिन वो जो पार्टनरशिप भी है निखिल भाई स्टोन के साथ, स्टोन एंड स्कॉट, बड़ी एसएनएस तगड़ी कॉम्बिनेशन लग रही है सर। दोनों तरफ से प्रेशर जब चल रहा हो ना तो रन बनाना मुश्किल होता है, और शुरुआत में आके 2 विकेटें गिर जाए पावर प्ले में और आप 188 वाला स्कोर चेस कर रहे हो तो फिर बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आप 188 का स्कोर चेस कर रहे हो, वो पहले 36 गेंदें पावर प्ले की, वो फिर बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप उसको नहीं कैपिटलाइज करोगे तो फिर बहुत पीछे रह जाओगे। तो जी आज का एक मुकाबला खत्म हो गया, लेकिन कल कौन सा मुकाबला है? कल है भाई एक और मुकाबला, एक और प्लेऑफ में मुकाबला। ये एक तरफ है माई एमिरेट्स, कायरन पोलार्ड अभी भी लगे हुए हैं, ट्रेंट बोल्ट है उनके साथ, एंड ऑफ कोर्स फजल हक फारूकी भी है, लेकिन दूसरी ओर है जेम्स विंस एंड ऑफ कोर्स द गल्फ जायंट्स, क्रिस जॉर्डन। ये मुकाबला खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कल शाम 7:30 बजे। द प्लेऑफ्स आर अप एंड रनिंग। दुबई कैपिटल्स ने पहला ऑफ कोर्स बाजी यहाँ पे मार लिया है वीरू भाई, लेकिन कल जो ये मुकाबला है, माई एमिरेट्स अभी तक की सबसे तगड़ी टीम लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि इनको रोके तो कौन रोके इस टूर्नामेंट? गल्फ जायंट ही रोक सकती है कि पिछली बार इनको रोका था, पिछली बार गल्फ जायंट इनको हराया था और पहुंचे थे फाइनल जीते थे। तो इस बार भी अगर कोई टक्कर की टीम है माई एमिरेट्स की तो वो गल्फ जायंट्स है। गल्फ जायंट्स की गेंदबाजी मुझे बहुत पसंद है, सटीक गेंदबाज हैं, चारों पांचों जितने भी है। अगर पहले बल्लेबाजी करके अच्छा रन लगा दिए बोर्ड पे ना तो मुश्किलें पैदा कर सकती है माई एमिरेट्स के लिए। तो सुनते हैं जी कायरन पोलार्ड से, कप्तान माई एमिरेट्स के, कि ऑफ कोर्स इस मैच से पहले उनका क्या मानना है। And in any tournament, the first thing you want to do is qualify, and being able to qualify and qualify in the top 2, I think was fantastic. The guys were really playing some good cricket, and you just look at the last couple of games as a sort of blip in the whole package of it. But sometimes as well, you just don't want to be winning all the time, and then so you lose a couple, and these things happen. But the main thing is that finishing on top is good. We have 2 bites of the cherry, which we're grateful for. Hopefully, we can do it in one and get to the final. देखिए जी, उस फ्रेंचाइज में बड़े खिलाड़ी हैं, वो तो ऑफ कोर्स इट्स प्रीटी ऑब्वियस, लेकिन उस फ्रेंचाइज में ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टूर्नामेंट्स जीते हैं सर, जो इस फेज को जीतना जानते हैं, इस फेज को खेलना जानते हैं निखिल भाई, एंड सो दैट इन इटसेल्फ विल बी द बिगेस्ट पॉजिटिव माई एमिरेट्स के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। किस तरीके से आप प्रेशर हैंडल करते हैं, और खासतौर से पोलार्ड जैसा खिलाड़ी
अब कप्तानी कर रहे हैं, ड्रेसिंग रूम का माहौल उस दिन कैसे, नहीं तो बहुत ऐसे खिलाड़ी होते हैं उतावलेपन में ना कुछ ज़्यादा करने चले जाते हैं और वहीं पे गलतियां होती हैं। चीज़ें शांत रखना उनसे बेहतर कौन जानता है। तो हमने ऑफ कोर्स कप्तान माय एमिरेट्स के जो कायरन पोलार्ड है उनकी बात सुनी। अब गल्फ जायंट्स के कप्तान जेम्स विन से सुनते हैं उनका क्या ऑफ कोर्स मानना है इस मुकाबले से पहले। Yeah, we know it'll be a tough game. You know, they've got some high quality players and they've been probably the standout team throughout the whole competition. A few big players returning for them, so we know it'll be tough, but yeah, we also beat them a few games ago, and as you mentioned, beat them last year in the qualifier or eliminator, so we've got something to lean back on, and hopefully our guys can turn up and put in a good performance and book our place in the final. हाँ जी, सो बेस्ट लक ऑफ कोर्स टू बोथ द टीम्स। वो मुकाबला कल आपके सामने होगा 7:30 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, लेकिन उससे ज़्यादा ऑफ कोर्स ज़्यादा ज़रूरी द बिगर पिक्चर ये है कि जी पहले 18 मैचेस में मोर देन 16 करोड़ पीपल हैव ट्यून्ड इन टू डीपी वर्ल्ड ILT20 सीजन 2। 16 करोड़ 10 लाख वीरू भाई, बड़ा नंबर है। मतलब क्वालिटी अगर आप दो तो लोग आएंगे। ये उतना ही बड़ा नंबर है जो शायद इंडिया में एक लीग होती है उसमें एक खिलाड़ी 16 करोड़ रुपए में बिका था। हाँ। तो उतना बड़ा नंबर है और बड़ा खुश होते हैं जब आपके पास 16 करोड़ रुपए आते हैं आपके बैंक अकाउंट में। तो ये भी हमारा बैंक अकाउंट है। अगर हमारे दर्शक 16 करोड़ दर्शक है हमारे हमको देखने वाले, तो ये बहुत बड़ा नंबर है हम लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस लीग को सेकेंड लीग बेस्ट बनाने के लिए। निखिल भाई, ऑल द मोर इन अ डे एंड एज हर जगह लीग हो रही है, इधर उधर हर जगह आप लीग का सेवन कर सकते हो। देन टू ऑफ कोर्स से कि यार जो व्यूअर है वो पिक करता है कहाँ पे मुझे क्वालिटी दिख रही है और फिर मैं उसके साथ जुड़ा रहूंगा। और जो बैट और बॉल का संघर्ष नज़र आ रहा है, लगभग हर मुकाबला जो है आपका वो रोमांच भरा रहता है। सिकंदर राजा अंतिम गेंद पे वो 6 रन चाहिए थे, उन्होंने वो छक्का मार के वो मुकाबला जिताया। और शायद अगर मैं गलत नहीं तो 46% महिलाएं हैं जो ये लीग देख रही थी उस 16 करोड़ के नंबर से। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट देखने में उनको मज़ा आ रहा है और आप स्पोर्ट के साथ तभी जुड़ सकते हैं जब एंड तक आपको वो रिजल्ट ना पता चल रहा हो। सो इनक्रेडिबल। मैं अपनी बेटियों को लाया था जी दुबई में मैच देखने के लिए। वो मेरे को पूछती पापा व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग? मैंने कहा पापा इज नॉट टैलेंटेड। पापा के गोटे गए में, पापा इज गॉन। बट भाई देखिए ऑफ कोर्स ये मजेदार चीज है और कंपटीशन जो है ना हमारे कमेंट्री बॉक्स में भी चलता रहता है। कैसे जी, आपको एक कमेंट्री लीडर बोर्ड दिखाए थे। वीरू भाई आज आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी भी सबसे अजय भाई is on top and rightfully so sir। 18 मैचों में उन्होंने प्रेडिक्ट किया है, 13 करेक्ट, 72% विन परसेंटेज। निखिल भाई कहाँ पे हैं? निखिल भाई आप यहाँ पे हो 57% ऑफ 14 गेम्स। वीरेंद्र सहवाग 7 मैचेस 57%। मतलब जोड़ी नॉट बैड है, नॉट बैड। मेरे को मैचेस कम दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि अगले साल मुझे ज्यादा मैचेस मिलेंगे तो मेरा जो रेशियो है ये ऊपर आएगा। भाई 8-10 मैच में तो इतना ही हो सकता है। 57% is a good enough। मेरी तो मार्कशीट पे भी नहीं आए यार 10वीं 12वीं में। मेरे 12वीं में आए थे 57। पर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अजय भाई को देख रहा था पिछले 2-3 अजय भाई ने ग्राफिक्स वाले को सेट किया हुआ है, वो खाना उनको खिला रहा है, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। नहीं सर, वो हर किसी के पास जा रहे हो कि तुम मेरे साथ जुड़ा रहे, फिक्र ना कर। और आप हमारे साथ जुड़े रहना। कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।